good, very good. Thank you for the instant IQ. सर record हो Thank रहा you. है So अभी? let me go. Let me go to the class now. Abdullah, now I think you can record. Okay. Yes sir. So now we'll discuss regarding the ability to visualize. So we are actually discussing how we can make ourselves more creative. So in that regard, now we'll be discussing how to make ourselves more eligible or increase our ability to visualize something. To visualize means to see something in more practical way. Now the first point is the creative people have a good visual imagination, although they can be quite verbal. जो लोग क्रिएटिव होते हैं, जनरली जो क्रिएटिव होना चाहते हैं, they need to have a good imagination skill. They need to think that what is going around in the practical life rather than just to go around the theoretical environment. जब हम कोई किताब में कुछ पढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, so example is nothing but the practical part of the theoretical study what we are doing. So we need to visualize how things are actually going on around us and what is the practicality behind these things, what is happening. That thing we need to visualize. You need to understand more practically. लोग कैसे सोचते हैं, लोग क्या जानते हैं, लोग क्या चाहते हैं. All these things we need to understand through a visualization. एक सोच रख के, एक imagination रख के हमको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा. They don't think of monster called Shrek. They can see it in their imaginations. ग्रीन एंड अगली एंड बिग. मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वो मॉन्स्टर देखते हैं अपनी इमेजिनेशन में, कुछ श्रेक देखते हैं, बट दे नीड टू थिंक समथिंग लॉजिकल एंड दे आर नॉट थिंकिंग और द इमेजिनेटिंग एनीथिंग ugly or any big, but they are thinking something logical, something imaginative, something can be more practicalized. So these are the things you need to understand. Now they remember their shopping list by visualizing the items kept in the to buy shelves of their minds. जब कोई क्रिएटिव बंदा कोई दुकान में शॉपिंग करने के लिए जाता है, so they try to understand what they have seen in the shopping shelves after coming back to home, and what thing they could remind in their mind that what they seen in the shopping shelf and how they uh, visualize those things. All these things you need to be very careful to when you are observing something. Then they organize numbers in visual spaces in their minds. कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने माइंड पे बहुत कुछ सोचते रहते हैं, बहुत एक न्यूमेरिकल करते रहते हैं, कुछ ऐसी चीज सोचते हैं जो कि शायद कोई दूसरा ना सोचा होगा. जब हम सपने देखते हैं तो कुछ अजीबोगरीब चीज हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन इट माइट बी हैव सम लॉजिक बिहाइंड दैट ड्रीम. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन लिंक our dream with a logical sense so that we can create something new. Now they think not only in words but also in pictures. कभी कभी हम लोग theoretically भी नहीं सोचते, कुछ पिक्टोरियल ग्राफिक्स द्वारा भी सोचते हैं कि अगर ये ऐसा होता है, ये बंदा ऐसा होगा, ये फोटो यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ पे ये कलर देने से अच्छा रहेगा. तो इट्स पिक्टोरियल व्यू के हिसाब से भी हम लोग कुछ कुछ क्रिएटिव चीजें सोचते रहते हैं. मतलब विजुअलाइज कैसे करनी है कोई भी चीज को, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली. They are good in describing the looks, sounds, smells, tastes and feel of these either verbally or visually. जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो हर कोई चीज को एक लुक देना कोशिश करते हैं, एक साउंड उसमें देने की कोशिश करते हैं, एक स्मेल देने की कोशिश करते हैं, उसमें एक टेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और एक फील और अटैचमेंट भी देने की कोशिश करते हैं. नॉट ओनली इन वर्बली बट विजुअली ऑल्सो. लोग उसको देखे, उसको अट्रैक्टिव, उस पर अट्रैक्टिव बने, उस हिसाब से उनको एक क्रिएटिव क्राइटेरिया, एक क्रिएटिव आर्किटेक्चर देने की कोशिश करते हैं. मतलब दिस हाउ द क्रिएटिव पीपल are actually make their mind and through a visualization process. This is little tough thing. It is not very easy to understand, but let us go with some examples in the next slides so that you can understand what actually we are talking about. Now coming to the next point, openness
to new experiences. हम लोग को हमेशा, मैं पहले भी बोला हूं कि हमको अपना जो माइंड है उसको ब्रॉड रखने की जरूरत है, ताकि हम लोग नया नया जो एक्सपीरियंस हमारे सामने आ रहे हैं उसको हम लोग मतलब बहुत इच्छा तरीके से, अपनी इच्छा से उसको एग्री करके उसको अपनाए और उसको एक्सपीरियंस करें। हम लोग जानने की कोशिश करें कि ये है क्या चीज। ऐसा नहीं कि डर के मारे हम चुपचाप बैठे और इस चीज को हम एक्सपीरियंस करने के लिए अपने आप को आगे ना बढ़ाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाउ मेनी टेस्टेड ऑफ योर यूजुअल फेवर, रेस्टोरेंट में जाते हैं हम लोग, हमेशा एक ही दो ही मेनू को हम लोग ऑर्डर करते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि मेनू कार्ड में तो बहुत सारे ऐसे आइटम दिया रहता है, कभी हम एक ऐसा आइटम हम लोग ऑर्डर करें जो हम कभी सोच भी नहीं होंगे कि ये किस तरह का आइटम हो सकता है, एक अननोइंगली। हाँ, नाम तो बहुत देखते हैं, मान लो ये सूप वो सूप, ये चिकन वो कंटकी, लेकिन हम लोगों ने हमेशा अपने पसंद का ही कुछ ऑर्डर करते हैं। लेकिन ऐसा भी कुछ कभी कभी ऑर्डर हमने किया है जो शायद हमको पसंद नहीं है, फिर भी हम लोग एक एक्सपीरियंस करने के लिए ऑर्डर करके देखते हैं कि क्या चीज है। तो इस तरह का कुछ हरकत हम करेंगे, देन आई थिंक वी आर trying to experience something new thing and trying to become more creative, and how we can learn something more out of that experience. Then did you ever hang out with a bunch of people you weren't very familiar with? कभी हम लोग कुछ इन ऐसे लोगों के साथ कभी ऐसे घुले मिले या कहीं पे घूमने गए हैं जो जिनको हम लोग ज्यादा जानते भी नहीं है, फेमिलियर भी नहीं है। तो इस तरह का एक नया एक्सपीरियंस हम लोग कभी किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो करना चाहिए, ताकि हम लोग को कुछ नया सीखने को मिले। Then do you always take the same road to work or try to explore newer routes? क्या हम लोग हमेशा सेम रोड से हर हर दिन यूनिवर्सिटी जाते हैं या कहीं और घर पे जाते हैं, या कभी कभी नया कुछ रूट लेके हम लोग जाते हैं, नया रूट एक्सपीरियंस करते हैं? अगर नहीं किए हैं तो भी हमको करना चाहिए, ठीक है। नाउ क्रिएटिव पीपल आर ओपन टू न्यू एंड अननोन एक्सपीरियंसेस। जो क्रिएटिव बनना चाहते हैं या है, वो लोग हमेशा कुछ नया नया चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने लाइफ में, कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपने लाइफ में, ताकि उस देख पाए, समझ पाए कि कुछ नयापन कैसे हो सकता है, हम लोग भी अपने जिंदगी में कुछ नयापन कैसे ला सकते हैं, या लोगों के जिंदगी में भी नयापन लाने के लिए हम लोग किस तरह से ट्राई कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट के द्वारा, नया सर्विस के द्वारा। अगर खुद ही हम नया कुछ एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो हम कैसे दूसरे लोगों को नयापन सिखाएंगे, नयापन लाने के लिए कोशिश करेंगे, नयापन एक्सपीरियंस करने के लिए कोशिश करेंगे। तो पहले खुद के ऊपर वो कैरेक्टरिस्टिक्स डालना होगा, then only we can make other people also to experience the same thing which we have already experienced. Now coming to the next, new experiences are not so much risk bearing as they are different. हमेशा हम लोग सोचते हैं कि नया कुछ एक्सपीरियंस करेंगे तो ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, हम उसमें प्रॉब्लम में फेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे तो हमको लगेगा कि ये कभी कभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, ये रिस्की नहीं भी हो सकता है। तो पहले ही हम अगर ये सोच लेंगे कि ये रिस्की है तो हम कभी भी कुछ नया रिस्क लेके काम नहीं कर पाएंगे, या तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम एक क्रिएटिव होने से भी हम अपने आप को रोक लेंगे। तो हम क्रिएटिव बनने के लिए नया एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। न्यू एक्सपीरियंसेस गिव a novelist more characters to write about, a painter more scenes to paint, and the creative team more angles from which to tackle an advertising problem. जब कोई एक पेंटर होता है या एक नोवेलिस्ट होता है, वो कुछ नया लिखने के लिए उसको नया कुछ एक्सपीरियंस गैदर करना पड़ता है। अगर कोई पेंटर कुछ नया चीज पेंट करना चाहता है, उसको भी कुछ कुछ नया चीज एक्सपीरियंस करने की जरूरत होती है। इसी तरह से अगर तुम एक एडवर्टाइजिंग प्रॉब्लम, एक एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहोगे, तो तुमको कुछ नया नया प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करना होगा, ताकि उस प्रॉब्लम को समझ के तुम उसका एक सॉल्यूशन निकाल पाओ, और थ्रू एडवर्टाइजमेंट यू कैन गिव दैट सॉल्यूशन टू द पीपल। एंड दिस इज व्हाई हाउ यू कैन make your creativity into your advertising strategy and make people attractive towards your product or services. Then coming to the next, a positive mindset. मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा अपने दिमाग में नेगेटिविटी आने की कभी नौबत आने मत देना। हमेशा you should be positive while you thinking some in some aspect. From the ancient India literature to the modern inspirational texts, many a book has said that a man becomes what he thinks. बहुत सारे एंशिएंट इंडियन के जो लिटरेचर है या मॉडर्न इंस्पिरेशनल जो टेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हमेशा यही बोला गया है कि लोग वही बनता है वो जो सोचता है। Yes, अगर sir. तुम अच्छा सोचोगे तो तुम हेलो Yes, sir. या any problem? No, sir. No, sir. Continue. Okay.
तो लोग वही सोचते हैं जो मतलब वही बनते हैं जो वो सोचते हैं। अगर तुम अच्छा सोचोगे तो तुम अच्छा ही बनोगे, अगर तुम बुरा सोचोगे तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बाकी आस पड़ोस के जो लोग रहते हैं या किसी दोस्त के बारे में, तो तुम्हारा एटीट्यूड भी धीरे धीरे वो नेगेटिव बन जाता है, बुरा बन जाता है। तो तुम्हारा सोच जो है वो जितना तुम पॉजिटिव रखोगे, अच्छा रहोगे, उतना तुम्हारे आसपास के लोगों की तरफ भी तुम्हारा पॉजिटिविटी बढ़ेगा, तुमको ज्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो तुम थोड़ा सा नेग्लेक्टेड हो जाओगे। सो यू कैन ट्रेस दिस थॉट, ये जो थॉट है इन द उपनिषद, उपनिषद अगर पढ़ोगे तो यही सब चीजें लिखा गया है वहां पे, एंड फाइंड इट एक्सप्रेस्ड इन द मेडिटेशंस ऑफ मार्कस ऑरेलियस और इन द राइटिंग्स ऑफ बुद्धा, कॉन्फ्यूशियस, मोहम्मद, अरिस्टोटल एंड सॉक्रेट्स। इतने जितने सारे लोगों के नाम हमने अभी लिया है, जो पुराने जो थिंकर्स होते हैं, वो हमेशा एक ही चीज को बार बार बोलाया गया है कि आप जितना पॉजिटिव थिंकिंग करोगे, जितना अच्छा सोचोगे, उतना ही आपका जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें अच्छा ही पैदा होगा। देखिए स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस देव, सॉक्रेटिस ले लो, जीसस क्राइस्ट ले लो, वो लोग लोगों के लिए अच्छे सोचे हैं, वो खुद के लिए अच्छे सोचे हैं, इसलिए उनको आज हम लोग बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, मानते हैं। ठीक है। सो सेवरल इयर्स ago an experiment was performed in a school in San Francisco। देखो बहुत मजेदार एक एक्सपेरिमेंट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। प्लीज म्यूट करके रखो। क्या है मजेदार एक्सपेरिमेंट? वेरी नाइस, यू जस्ट लिसन टू इट। द प्रिंसिपल, एक कॉलेज, एक स्कूल में एक प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल हैड कॉल्ड इन 3 teachers and said, because you 3 teachers are the finest in the system and have the greatest expertise, we are going to give you 90 selected high IQ students to teach। क्या किया उसने एक्सपेरिमेंट में? एक 3 टीचर को बुलाया और उनको बोला कि आप बहुत अच्छे टीचर हो, ठीक है, और क्या किया, उनको बोला गया कि आपको हम लोग 90 ऐसे बहुत हाई आईक्यू वाले स्टूडेंट देंगे जिनको आपको पढ़ाना होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, वी विल टेस्ट हाउ मच दे लर्न एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर हम लोग देखेंगे कि अच्छे टीचर अगर अच्छे स्टूडेंट को पढ़ाए तो उनका ग्रेडिंग में बढ़ोतरी हुआ कि नहीं, वो अच्छे बने कि नहीं। Then the third point, the principal told a similar thing to the selected students as well। पहले तो उन्होंने टीचर को बोला कि आप अच्छे टीचर हो और आपको अच्छे स्टूडेंट देंगे, फिर स्टूडेंट को भी बोला कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपको अच्छे टीचर देंगे पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। देन क्या हुआ देखो, मजेदार चीज अभी आ रहा है। By the end of the school year, those students had achieved 20 to 30% अदर स्टूडेंट्स इन द एंटायर सिटी। के लिए उनको अच्छा मार्क्स मिला है, बाकी जो स्टूडेंट्स है बाकी स्कूलों में, उस सिटी में उनसे ज्यादा उनको मार्क्स मिला है। अभी और मजेदार चीज क्या है देखो, however the truth was that the chosen teachers and students were just run of the mill teachers and students selected at random by drawing names out of a hat। मतलब जो टीचर थे वो एक्चुअली उतना हाई कैटेगरी टीचर थे ही नहीं, उनको बोला गया लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन दे आर जस्ट एवरेज टीचर्स। और स्टूडेंट्स जो भी थे वो भी इतना हाई आईक्यू वाले स्टूडेंट थे ही नहीं, वो जस्ट सिंपल कैटेगरी के स्टूडेंट है, एक रैंडम बेसिस पे उनको सिलेक्ट किया गया है। तो अभी क्या हुआ, नाउ द फाइनल पॉइंट देखो, हाउ देन डिड दे परफॉर्म एट सच एन एक्सेप्शनल लेवल फॉर द एंटायर ईयर। लेकिन फिर भी वो टीचर भी कितना अच्छा ऐसे कैसे पढ़ा लिए और स्टूडेंट भी अच्छा रिजल्ट कैसे कर लिए? इसका मतलब द आंसर इज that can be found in the attitude। इसका मतलब लास्ट देखो पॉइंट, they had an attitude of positive expectations, they believed in themselves and one another and that attracted positive results। मतलब उनके दिमाग में, उनके साइकोलॉजी में पहले ही प्रिंसिपल ने बोल दिया था कि you are good। तो ये जो गुडनेस उनके दिमाग में बैठ गया, एक पॉजिटिव एनर्जी उसमें क्रिएट किया, उस पॉजिटिव एनर्जी ने, और स्टूडेंट को उन्होंने जो बोला प्रिंसिपल ने कि आप भी अच्छे स्टूडेंट हो, तो एक पॉजिटिविटी जो उनके दिमाग में चला आया और उनको अच्छे स्टूडेंट टीचर पढ़ाएंगे और टीचर को बोला कि आपको अच्छे स्टूडेंट्स दे रहे हैं। ये जो सब अच्छे एक पॉजिटिविटी पूरे क्लास में माहौल में तैयार कर दिया, ये पॉजिटिविटी की वजह से दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर लिए। एंड दिस इज व्हाई वी आर टेलिंग कि तुम लोगों को भी पॉजिटिव
एक सोच अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। जितना ज्यादा पॉजिटिव दिमाग में सोच रहेगा, उतना तुम्हारा जो आउटपुट होगा, जो भी तुम काम करोगे, जो भी क्रिएटिविटी करोगे, उसमें देखना आउटपुट बहुत बढ़िया आएगा। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट which has been done in San Francisco, and it is literally working like anything. So in our life also, if you apply this type of techniques, it will definitely going to give us a good result. Coming to the next slide, टिप्स टू स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी। अभी तुम अपने दिमाग में स्टिमुलेटिंग कैसे करोगे क्रिएटिविटी को? मेडिकेट ऑन योर गोल, मतलब डोंट लूज साइट ऑफ योर ड्रीम। जो भी तुम सोच रहे हो, वो सोच को कभी भी नजरअंदाज मत करो, उस पर लगे रहो। देखना एक दिन तुमको जरूर उस पर एक मतलब कामयाबी मिलेगी। इफ यू वांट टू टेक अप फोटोग्राफी एज ए करियर, अगर मान लो तुम फोटोग्राफी में कुछ करियर बनाना चाहते हो, then what you should do, it is just an example so that you can take any other hobby of your own and उस पे काम करते रहो ताकि तुम उस पे सक्सेसफुल बनो। तो फोटोग्राफी अगर किसी का हॉबी है, तो तुमको किस तरह से उस फोटोग्राफी के अंदर घुसना है, उसका एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं। स्टार्ट नोटिंग फोटोग्राफिक सिचुएशंस एंड सेटिंग्स। तुम देखो कि फोटोग्राफी किस तरह का सिचुएशन में फोटोग्राफी कर सकते हैं, किस किस चीजों का फोटो हम उठा सकते हैं, इसका एक थोड़ा सा नोटिंग करो। देन टेकिंग पिक्चर्स विद अ बिगिनर्स कैमरा। इतना हाई फाई कैमरा ही पहले मत लो, मोबाइल से या कोई छोटे मोटे कैमरा से पहले फोटो लेना शुरू करो कि तुम्हारे मनपसंद कुछ फोटोग्राफ तुम खींचना शुरू करो। देन क्या करो, मेकिंग ए पेपर बॉक्स कैमरा। कभी कभी बच्चे भी ऐसा करते हैं, पेपर लेके कुछ बॉक्सेस लेके कैमरा बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी तुम ट्राई करो ताकि कैमरा के ऊपर, फोटोग्राफी के ऊपर तुम्हारा इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़े। देन ट्राइंग आउट डिफरेंट कंपोजिशन, अलग अलग तरीके से फोटो खींचो। अलग अलग, जैसे हम लोग देखते हैं कि सिनारी का फोटो खींचना, अलग अलग लोगों का फोटो खींचना, अलग अलग एक सिचुएशन का फोटो खींचना, अलग अलग तरीके से कुछ जंतु जानवर का फोटो खींचना, अलग अलग टाइप के फोटो तुम खींचना शुरू करो। देन विजिटिंग फोटोग्राफी एग्जीबिशंस। एग्जीबिशन में जाके देखो कि लोग किस तरह से फोटो खींचते हैं, कौन कौन से एंगल से खींचते हैं, किस किस तरह के फोटो खींचते हैं, कौन कौन से सिनेरियो के फोटो खींचते हैं। इस तरह से तुम एक एक्सपीरियंस गैदर करो। देन क्या करो, टॉकिंग टू द एक्सपर्ट्स। अभी कुछ एक्सपर्ट्स लोगों से बातें करो जो कि फोटोग्राफी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ताकि उनसे तुमको कुछ आइडिया मिले कि तुमको भी किस तरह से उनकी जैसा बनना है। देन रीडिंग फोटोग्राफी रिलेटेड मैगजीन्स एक्सेट्रा। इसके बाद पढ़ाई करो, लिटरेचर रिव्यू करो कि फोटोग्राफी जो जो किए हैं उन्होंने कैसे एक्सपीरियंस करके किए हैं, किस तरह से वो लोग फोटोग्राफी किए हैं, किस तरह से वो लोग फोटोग्राफी को मतलब आगे बढ़ाया है, इस तरह से उनका जो एक्सपीरियंस है वो जो उन्होंने शेयर किया है, वो थियरी में तुम उनकी जैसा बन कैसे सकते हो उसको देखो। सो ऑल दिस थिंग्स विल गिव यू ए गाइडेंस टू मोटिवेट यू एंड टू क्रिएट ए पॉजिटिव एनर्जी ऑन यू हाउ टू गो फॉर ए गुड फोटोग्राफी। देन think of the rewards you would get when your goal is accomplished. तुम सोचो कि अगर तुम अच्छा फोटोग्राफर बन जाओगे तो तुमको एक नेशनल अवार्ड या इंटरनेशनल अवार्ड मिलेगा। तो ये अवार्ड किस तरह से तुमको मिल सकता है, उसके लिए तुमको अभी से उसके ऊपर काम करना है। सिर्फ अवार्ड के लिए काम नहीं करना है, अवार्ड तो ऑब्वियसली मिलेगा, लेकिन उसके पीछे तुमको जो मेहनत करनी है, वो मेहनत किस तरह से स्ट्रेटेजाइज तुम करोगे, उसके ऊपर तुमको ज्यादा ध्यान देना है। और अवार्ड क्या है? अवार्ड एक पॉजिटिव एनर्जी है कि इफ यू कैन डू इट, यू माइट गेट दैट award. So that energy can be created by that award. Then basking in your glory of achievements is a great impetus to working hard. मतलब बहुत सारे basking मतलब बहुत सारे चीजों की mix of basking in the glory, मतलब तुम जो इतने सारे glory को achieve करने की कोशिश कर रहे हो, is a great impetus, एक great input है working hard। मतलब तुमको आगे जाके बहुत ज्यादा कुछ achievement तुमको मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। ये जो तुम सोच रहे हो, वो सोच तुमको हार्डवर्क करने के लिए और ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए इन्फ्लुएंस करेगा। क्रिएट एन एटमॉस्फेयर अराउंड यू दैट कंस्टेंटली रिमाइंड्स यू ऑफ योर गोल। तुम अपने चारों तरफ एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करो ताकि हमेशा तुमको अपने गोल की तरफ खींच के लेके जाने के लिए तुमको मदद करे। जैसे अगर तुम फोटोग्राफर बनना चाहते हो, तुम्हारे पूरे घर में चारों तरफ जहां पे भी तुम सोते हो, खाते हो, जागते हो, चलते हो, चारों तरफ फोटोग्राफी ही फोटोग्राफ रहना चाहिए, ताकि तुम उसको देख के इंस्पायर हो और आगे जाके और अच्छी तरह से उसको बढ़िया बना पाओ। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मेडिटेट ऑन योर सेल्फ। बाय मेडिटेशन वी मीन सिटिंग साइलेंस। मेडिटेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ में, जिसके द्वारा हम लोग बहुत ज्यादा कुछ सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं
और उसको इम्प्लीमेंट भी आगे जाके कर सकते हैं। कंप्लीट साइलेंस में हम लोग अपने आप को लेके जाते हैं। देन in the modern day we are constantly bombarded with inputs from the media, other people, etc. हम लोग आजकल टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, बहुत सारे कुछ सुनते हैं, पॉलिटिकल मैसेज देखते हैं, तो इतने सारे चीजें हमारे कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग में बॉम्बार्ड होते जाते हैं, तो हम लोग कभी कभी शांत नहीं रह पाते हैं। तो उस शांति को पाने के लिए we need to do some meditation. Now Hence we never spend time in silence with ourselves. इसकी वजह से, मीडिया की वजह से, ये सब न्यूज की वजह से हम लोग कभी कभी अपने आप को साइलेंस में नहीं रख पाते हैं। As long as our mind is full of thoughts, we can't touch base with the subconscious. हमारे पास एक सबकॉन्शियस माइंड भी है, जिसमें जाने के लिए हम एक साइलेंस की जरूरत होती है, हमको एक साइलेंस में जाने की जरूरत होती है। अगर लॉन्ग टाइम में हम दिमाग इतना ज्यादा कैओस से फुल करके रखेंगे तो उस सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग जा नहीं पाते हैं। इन मेडिटेशन वी रिलैक्स एंड लेट द थॉट्स फ्लो। जब हम मेडिटेशन करते हैं, साइलेंस में चले जाते हैं, तब हमारे जो चिंता है, हम जो सोचना चाहते हैं, हम जो इमेजिन करना चाहते हैं, वो चीज धीरे 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 हमारे दिमाग में शुरू होता है। अगर हम साइलेंस में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा कैओस में रह जाएंगे, तो फिर वो हमारा जो अपना सोच है, दिमाग है, उसको हम ठंडे दिमाग से सोच नहीं पाएंगे। दैट्स when most creative ideas come to us. जब हम साइलेंस में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब क्रिएटिव थिंकिंग हमारे दिमाग में पैदा होता है। जब हम लोग पूरे कैओस में रहते हैं, तब कोई भी सोच हमारे दिमाग में नहीं आता और क्रिएटिव चिंता तो और भी नहीं आता। तो इसलिए हमको मेडिटेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इफ यू वांट टू बिकम ए क्रिएटिव पर्सन। देन जर्नल योर थॉट्स। जर्नल मतलब जैसे हम लोग अकाउंटेंसी में जर्नलिंग करते हैं, क्या करते हैं, जर्नलिंग में बहुत सारे कहाँ पे स्पेंड कितना हुआ, कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कहाँ पे खर्चा करनी है, कहाँ पे क्या है, वो जर्नलिंग करते हैं। और एक जर्नलिंग क्या होता है, जो जर्नलिज्म में जो जर्नल होते हैं, लोग कुछ लिखते हैं, कुछ सिचुएशन के बारे में कुछ लिखते हैं अपने लैंग्वेज के द्वारा, अपने लिटरेचर के द्वारा। तो जर्नलिंग इज एकिन टू मेडिटेशन, मतलब जर्नलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मेडिटेशन। अगर तुम मेडिटेशन करोगे, देन यू कैन जर्नल so many aspects, so many thinking, so many imagination, so many creative ideas in a mind, in a pure mind, in a blank mind, and you can jot it down in a pen and paper. So it is the free flow of pen to get past your conscious thoughts. मतलब तुम एक पेन एंड पेपर लेके बैठो, फिर तुम अपने दिमाग को शांत करो, मेडिटेशन करो, जो भी तुम्हारे दिमाग में क्रिएटिव थिंकिंग आ रहे हैं उसको जॉट डाउन करो। अगर तुम शांत दिमाग में नहीं रहोगे तो तुमको क्रिएटिव थिंकिंग नहीं आएगा और तुम लिखने के लिए भी कुछ तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए देखना, जो भी लोग कुछ पोएम लिखते हैं या जो भी लोग कुछ पोएट्री लिखते हैं या मान लो कोई स्टोरी लिखते हैं, दे ऑलवेज गो फॉर ए लोनली एरिया, लोनली प्लेस, जहाँ पे कुछ लोग नहीं होते, शांत दिमाग होता है, वहां पे वो सोचते हैं और फिर वो एक किताब लिखते हैं या एक पोएम लिखता है। तो वो क्रिएटिविटी तभी आता है जब वो साइलेंस में चले जाते हैं। सो इन हर बुक द आर्टिस्ट way morning pages journal, author Julia Cameron advises to write anything that comes to your mind until you fill 3 pages, because by then you will have gotten past most of your conscious thoughts. कभी भी कुछ अगर तुमको क्रिएटिव लिखना है, just sit in a silent place and write whatever is coming in your mind. उस पे ग्रामर कितना अच्छा होगा, ग्रामर कितना बुरा होगा, वो देखने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे दिमाग में रैंडम थॉट्स आते हैं उसको जॉट डाउन करते रहो, जॉट डाउन करते रहो। देखना ऑटोमेटिकली जब तुम रीड करोगे उसको, देखना तुम ऑटोमेटिकली एक पोजीशन में आ गया हो कि हाँ, तुमने जो भी सोचा है उसको हम एक अच्छा अभी शेप दे पा रहे हैं और उस शेप के ऊपर बेस करके हम एक अच्छा आर्टिकल भी लिख चुके हैं या अच्छा थॉट लिख चुके हैं। सो हमेशा अपने दिमाग को कुछ ना कुछ सोच में मतलब डाल दो और उस सोच को लिखते रहो हैपजर्डली, ठीक है। देन इट्स बेस्ट टू ट्राई दिस टेक्निक एंड अर्लियर इन द डे व्हेन यू आर नॉट टू फुल विद द इवेंट्स ऑफ द डे। जब तुम सुबह एकदम 5 बजे या 4 बजे सुबह जागते हो, तो फिर उस टाइम में तुम्हारा दिमाग बहुत शांत रहता है, बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में भरता नहीं है। उस टाइम में तुम लिखना शुरू करो, उस टाइम सबसे ज्यादा अच्छा लोग सोच सकते हैं, सुबह के टाइम। So this is the one technique how you can make more creative thinking during that time period. Don't censor yourself. Censor मतलब जो भी तुम लिख रहे हो उस पे कुछ उल्टा सीधा भी लिख रहे हो तो उसको सेंसर मत करो, जस्ट लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। Don't let your pen stop and don't use a computer. कंप्यूटर में मत लिखो, पेन एंड पेपर में लिखो तो
और भी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन कंप्यूटर में फिर देखोगे लिखोगे तो फिर तुमको आंखों में प्रॉब्लम हो सकते हैं। इससे बेहतर है कि तुम पेन एंड पेपर में लिखो। These are some of the techniques you can apply. Now when the mind gets purged of routine thoughts, creative ideas take deeper roots. जब तुम्हारा माइंड गेट्स purged मतलब तुम्हारा माइंड जब दूर हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है ऑफ रूटीन थॉट्स कि आज हम रोज क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो रूटीन थॉट्स से तुम थोड़ी देर के लिए दूर रहो, अपने माइंड को रखो और क्रिएटिव आइडियाज देखना, तुम डीपर रूट्स तक तुम जा पाओगे। कुछ क्रिएटिव रूट तुम्हारे दिमाग में मतलब पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो कभी कभी इस टेक्निक को अप्लाई करने से तुम्हारा क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्लीप ऑन प्रॉब्लम्स। जब भी तुम सोते हो, दैट टाइम यू थिंक समथिंग व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू मेक समथिंग क्रिएटिव। सोच, जब तुम सोते हो वो टाइम सबसे बेहतर होता है कि तुम वो सोच लेके सो जो तुम क्रिएटिव कुछ बनाने की कोशिश करना चाहते हो। स्लीप किंडल्स लिटिल थिंकिंग। जब तुम सोते हो देखना एक सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा थिंकिंग सपने में पैदा कर देता है जो तुम अचानक से सोचते हो, ये मैंने सपने में सोचा था, लेट अस वर्क ऑन इट। ऐसा कभी कभी तुम्हारे साथ हुआ भी होगा, मेरे साथ भी हुआ है। देन ड्यूरिंग स्लीप आवर ब्रेन रिकॉग्नाइजेस आवर एपिसोड मेमोरीज which store information about places, people, exchanges and experiences. जो भी पूरा दिन में तुम देखते हो, सुनते हो या एक्सपीरियंस करते हो, देखा जब तुम सोने जाते हो सपने में कुछ कुछ चीजें इस तरह के एपिसोड मतलब धारावाहिक तरीके से एक के बाद एक आने की कोशिश करता है। तो तुम सभी को अगर एकजुट करके एक चीज को बनाने की कोशिश करोगे तब देखना एक क्रिएटिव कुछ बन जाता है। इट इज नॉट वेरी इजी थिंग बट ग्रेजुअली it can happen with you when you sleep at time and when you experience some new thing at daytime. This shuffling of the day's events leads to thinking about problems afresh. ये जो shuffling पूरा दिन में जो भी हुआ और तुम अपने दिमाग में रात को सोते टाइम सपने में ये देखा है, इमेजिन किया है, देखना एक लॉजिकल तुम्हारे सामने कुछ लॉजिकल बातें रख देंगे उस सपने में ही, और उस लॉजिकल बातों को लेके जब तुम जग जाओगे उसको जॉट डाउन कर लो कि मैंने सपने में इस चीज को इस तरह लॉजिकली देखा था या सोचा था, सो लेट अस वर्क ऑन इट, लेट अस राइट इट डाउन। नाउ इट इज आल्सो अ टाइम व्हेन द पावर्स ऑफ द सबकॉन्शियस ब्रेन कैन बी यूटिलाइज्ड। मतलब सोते टाइम तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर है उसको तुम ज्यादा यूज कर सकते हो, और इसको यूज जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा क्रिएटिव थिंकिंग पैदा होगा हर रोज। ठीक है, व्हेन यू स्लीप ब्रीफ योर सबकॉन्शियस माइंड of the problem you are mulling over and command it to come up with creative suggestions. तुम जब सोचते हो, तुम जब सोते हो, तुम जब बहुत गहरे नींद में होते हो, देखना नींद में भी सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग कभी कभी अपने ब्रेन के साथ बातें करते हैं या कुछ सोचते हैं, तब तुम ब्रेन को पूछो कि हाँ मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, आप इसको कैसे कर सकते हैं। देखना सबकॉन्शियस माइंड तुमको कुछ ना कुछ आइडिया दे देगा। It seems to be very funny but it's actually works. It actually works. You try and trial and you will find some creative thinking will come to your mind, and it is not so easy even. Then coming to the next slide, take some time out of yourself to think, to read. कभी कभी अपने आप को बाकी सब कामों से दूर रख के सोचने के लिए कुछ टाइम अपने आप को दो, कुछ पढ़ने के लिए अपने आप को टाइम दो। टू टेक ए वैकेशन, कहीं पे वैकेशन में जाके दूर जाके सोचने के लिए तुम अपने आप को धकेलो। टू वॉच ए प्ले, टू एक कुछ प्ले देखो, जो भी लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो भी लोग कैसे बातें कर रहे हैं, क्या मोरल ऑफ द स्टोरी है। टू इंडल्ज इन ए हॉबी, अगर तुम्हारे पास स्टैम्प कलेक्शन का हॉबी है, गिटार बजाने का हॉबी है या कुछ और हॉबी है तो उस हॉबी को बरकरार रखो। दैन टू टेकल लेजरली वॉक इन पार्क, मतलब कभी कभी पार्क में जाके लेजरली वॉक करो, फ्री ऑफ माइंड को फ्री रखो। टू पर्ज योर ब्रेन फ्री ऑफ ऑल द गार्बेज इट कीप्स रिसीविंग एवरी डे, मतलब ये सब क्यों करो ताकि तुम्हारा ब्रेन को फ्री रख पाओ गार्बेजेस से, जो भी पूरा दिन सोचते रहते हो, ताकि एवरी डे तुम कुछ फ्री टाइम में कुछ क्रिएटिव थिंकिंग कर पाओ। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिवील इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ, मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है टू रिवील इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ, मतलब सिंपल तरीके से जीने की कोशिश करो, ना कि इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी दिमाग में मत घुसो, तो तुम्हारा प्लेजर जो है वो खराब होने की चांस रह सकता है। ऑल्सो समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू फिल्टर आउट द क्लैमर ऑफ द मॉडर्न डे।
आज के जो एरा है, हम लोग देखते हैं कि व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज आते हैं, फेसबुक पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, न्यूज में बहुत सारे अभी कोरोना वायरस के बारे में न्यूज चैनल में बोलते रहते हैं। तो कभी कभी इन सब से एकदम दूर हट जाओ, मोबाइल फोन को ऑफ कर दो, टीवी को ऑफ कर दो, फेसबुक को ऑफ कर दो, और एकदम शांत दिमाग में अपने साथ अपने रहो और कुछ खुद का कुछ इनोवेटिव सोचने की कोशिश करो। Throw your newspaper in a garbage bin and keep your television mobile turned off. The stock market is not going to do any better if you follow it, and nor are the Lok Sabha or the ruling party. इन सब चीजों को थोड़ी देर के लिए दूर रख दो, 2-3 दिन के लिए, और एकदम अपने दिमाग के साथ खुद को एकदम बांध लो कि अभी मैं सिर्फ अपना सोचूंगा, बाकी और कुछ मैं सुनने की तैयार में नहीं हूं। Then coming to the next, नर्चर हॉबीज, मतलब डांस करो, सिंग करो, देन पढ़ो, ट्रेवल, टेक फोटोग्राफ्स, कलेक्ट स्टैम्प्स, डू समथिंग इंटरेस्टिंग। तो इस तरह की कुछ अगर हॉबी है तो तुम उसको ज्यादा करने की कोशिश करो। हॉबीज लुब्रिकेट योर क्रिएटिव मशीन्स एंड प्रिवेंट यू फ्रॉम रॉटिंग फ्रॉम द डेली रट। जो हॉबी होता है वो तुमको तुम्हारा जो क्रिएटिव मशीन है उसको लुब्रिकेट करता है, उसको बहुत ज्यादा स्लिपरी कर देता है और उसको बहुत ज्यादा मजबूत करता है, ताकि तुम प्रिवेंट करो अपने आप को रॉटिंग फ्रॉम द डेली हार्ट। जो तुम हर रोज के जो चिंताएं हैं, हर रोज के जो तुम्हारे भावनाएं हैं, हर रोज के जो तुम क्लटर में जी रहे हो, उससे तुमको थोड़ा दूर रखने की कोशिश करता है। दे प्रोवाइड वेंट फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, वो तुमको सेल्फ एक्सप्रेशन करने के लिए जगह देती है। दे फोस्टर क्रिएटिविटी, मतलब तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी लाने की वो कोशिश करते हैं। ऑल्सो एंगेज इन क्रिएटिव एक्टिविटीज दैट कैच योर फैंसी, मतलब जो तुम्हारा जो क्रिएटिव एक्टिविटी है वो तुमको और करने के लिए मजबूर करता है और तुमको इंटरेस्ट पैदा करता है। स्केच कार्टून्स, विजिट एन आर्ट गैलरी, अटेंड ए म्यूजिकल सिम्फनी, वॉच द लेटेस्ट हिट मूवी, रीड वेकी नॉवेल, हैंग आउट इन प्लेसेस ब्रिमिंग विथ यंगस्टर्स एंड द लाइक। कभी कभी कार्टून बनाओ, कभी कभी आर्ट गैलरी विजिट करो, म्यूजिकल सिम्फनी को अटेंड करो, लेटेस्ट हिट मूवी जो वो भी देखो, कभी कभी नोवेल पढ़ो, देन हैंग आउट इन प्लेसेस ब्रिमिंग विथ यंगस्टर, जहां पे ज्यादा यंगस्टर्स होते हैं वहां पे जाके कभी हैंग आउट करो, एंड द लाइक। ये सब करो, देखना अपना दिमाग शांत रहेगा और तुम ज्यादा क्रिएटिव आइडिया लाने की तुम सोच पाओगे। देन अपार्ट फ्रॉम एडिंग द क्रिएटिव प्रोसेस, दे ऑफर ए चेंज ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम द ट्राइड रूटीन एंड किक स्टार्ट द थिंकिंग प्रोसेस। ये जो क्रिएटिव प्रोसेस तुमको क्या करेगा, अपार्ट फ्रॉम एडिंग द क्रिएटिव, मतलब क्रिएटिव प्रोसेस लाने की तो तुमको मदद करेगा ही ये सब चीजें, और वो क्या करेगा, दे ऑफर ए चेंज ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम द ट्राइड रूटीन एंड किक स्टार्ट द थिंकिंग प्रोसेस। तुमको रूटीन एक्टिविटी से थोड़ा दूर लेके जाएगा और कुछ नया सोचने के लिए, नया कुछ करने के लिए तुमको मदद करेगा। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। नाउ वॉच योर कंपनी, और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीपल आर नोन बाय द कंपनी दे कीप। तुम किसके साथ घूम रहे हो, किसके साथ बातें कर रहे हो, किसके साथ चल रहे हो, वो सिर्फ बहुत डिपेंड करता है कि तुम कितना क्रिएटिव बनने जा रहे हो आगे, और तुम कितना अच्छा सोच पाओगे आगे। अगर तुम्हारा कंपनी बुरा होगा तो तुम्हारा सोच भी बुरा होने का चांस है। अगर तुम्हारे कंपनी अच्छे होंगे तो फिर तुम्हारा सोच भी अच्छा होने का चांस है। एंड दे अफेक्टेड बाय इट, मतलब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है तुम किस तरह से, किस सोच में अपने आप को आगे ले जाओगे। इफ द कंपनी यू कीप इज क्रिएटिव, पॉजिटिव माइंडेड एंड विवर्सियस, you will be too। अगर तुम्हारे कंपनी बहुत पॉजिटिव माइंडेड है, विवर्सियस है मतलब बहुत डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, अच्छे सोचते हैं, एंड ऑल्सो they have creative mind, then automatically you will also become same like them. So these are some of the points you need to be very much careful enough to understand and to apply in your own life, so that you can become more creative and more successful in your life. Now coming to the next slide, how much time we have, can anyone tell me? सर वो 30 सेकंड भी नहीं है सर अभी। Okay, so let us stop here today. So we'll continue the same in the next class. Okay, so just make the video in MP4 and send it me, and everyone can send a screenshot as like before to my WhatsApp ID. ठीक है? Thank you everyone. Thank you, sir.